Hello students, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Right. Next application we are going to discuss about the UCM is nothing but conical pendulum. Right. What is conical pendulum? एक रिजिड सपोर्ट, एक फिक्स सपोर्ट रहेगा, उसके साथ एक स्ट्रिंग, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो है वो हम यूज करते हैं. राइट. जो कि क्या कहते हैं, एक्सटेंड नहीं हो सके, उसमें एलोंगेशन नहीं आएगा. राइट. एंड द सेकंड इज नथिंग बट द बॉब, a spherical object we used to connect it on the lower end, and it is like this, है ना. If we my here my hand is acting as a rigid support, this is massless inextensible string, and this ball is acting as a bob, spherical object. Right. Now if this bob, अगर ये bob कुछ इस तरीके से मोशन परफॉर्म करता है along the same plane, is nothing but the simple pendulum. Right. This is nothing but the simple pendulum. We are going to discuss it in the oscillation. Right. लेकिन अगर हमने इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रोटेटिंग फोर्स अप्लाई कर दिया, एंड इफ इट रोटेट्स इन दिस वे, सो यू कैन ऑब्जर्व कि उल्टे डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, यू कैन ऑब्जर्व द कोन दैट इज लाइक आइसक्रीम कोन, और यू कैन से मूंगफली वाला कोन, है ना. सो दिस इज नथिंग बट द कोनिकल पेंडुलम. राइट. यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लाइक object that is nothing but the bob is performing a horizontal circular motion, है ना. The bob is performing a circular motion and that is along the horizontally. Right. So here I have drawn the equivalent diagram for this. This is a rigid support, a massless inextensible string, and this is nothing but the bob, spherical object. Right. And the bob is performing a horizontal circular motion, and this is the horizontal circular motion, the horizontal circle. We can say this is this bob, the initial position of the bob is nothing but the mean position. ठीक है. और बॉब के पास n, मतलब बॉब की जो पोजीशन है उसके पास वो n नंबर, मतलब along the circumference of this horizontal circle it is having infinite positions, जिसमें से मोस्ट इजीएस्ट एंड सुटेबल पोजीशंस हमारे पास दो है, एक ये. राइट. हम दो में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं. वी विल कंसीडर दिस पोजीशन. राइट. लेट अस अज्यूम कि बॉब इज एट दिस पोजीशन. नाउ यू कैन ऑब्जर्व उसके मीन पोजीशन के साथ, मतलब वर्टिकल वाई एक्सिस के साथ, ये जो एंगल अभी स्ट्रिंग ने बनाया है इसको हम कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, थीटा. ये जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा. दिस इज ऑल्सो थीटा. राइट. This is nothing but the length of the string. Right. And here the bob, that is point mass, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. Right. Now what are the forces acting on this? हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? We have to find the time period of this conical pendulum. टाइम पीरियड मतलब क्या? तो इस बॉब को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लग रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. ठीक है. और टाइम पीरियड का एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट 2 पाई बाय ओमेगा. ठीक है. उसी का यूज करेंगे, मतलब हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी. राइट. दिस इज द पॉइंट मास. इसके ऊपर सबसे पहला फोर्स कौन सा एक्ट करेगा? एज यूजुअल कॉमन फोर्स इज एफ जी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम जी. राइट. सेकेंड फोर्स कौन सा रहेगा? ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज इन अ स्ट्रेच्ड स्टेट. राइट. और स्ट्रेच्ड स्टेट में रहेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी along the length of the string there is vertically or inclined upward direction में towards rigid support there is one force, and the force is called as, let me consider T dash. T dash stands for tension. T dash लेने के पीछे का रीजन ये है कि T ले सकते थे लेकिन टाइम पीरियड के लिए हम कैपिटल T लेने वाले हैं. ठीक है. तो इसलिए इसको T dash कर दिया. Now the case is what? It is like this. This is nothing but the vertically downward direction wala force, that is Fg, gravitational force, and tension force is acting in this way. Now again they are not having 180 degree out of phase with each other, है ना. 180 degree ये होगा, है ना, ये ऐसा है ना. तो definitely these two forces will not balance each other. तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो Fg को बैलेंस करने वाला कोई तो भी एक फोर्स होना चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा? We have to plot a perpendicular
है ना, हमें परपेंडिकुलर्स प्लॉट करने पड़ेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन एज वेल एज अलोंग वाई डायरेक्शन. सो वाई एक्सिस, सो ये एक हो गया और यहां से ये एक हो गया. राइट, इन दोनों को पॉइंट मास से ज्वाइन कर देते हैं. So this is T dash y along y direction है and this is T dash x along x direction है. राइट, एंगल थीटा कौन सा रहेगा? ये थीटा है, इसका अल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा. ये एंगल किसका किसके साथ है? वर्टिकल का इंक्लाइन के साथ. तो ये इंक्लाइन और ये वर्टिकल, ये एंगल कितना हो गया? थीटा. राइट, तो इस हिसाब से ये टी डैश वाई और टी डैश एक्स, इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. थीटा का एडजेसेंट साइड है टी डैश वाई. राइट, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये हाइपोटेन्यूस, दैट इज टी डैश मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एंगल दैट इज थीटा. और टी डैश एक्स क्या हो जाएगा? इट इज टी डैश इनटू साइन ऑफ थीटा, है ना. नाउ वी कैन से टी डैश cos थीटा, दैट मींस टी डैश y will balance mg and this t dash x is moving towards the center of this horizontal circle. और towards the center जाने वाला फोर्स कौन सा है? सर्कुलर मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, एंड दैट इज नथिंग बट FCP, है ना. तो टी डैश एक्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू FCP. राइट, सो देयरफॉर फ्रॉम द डायग्राम हमें फाइंड आउट क्या करना है? द टाइम पीरियड of a conical pendulum as capital T is equals to 2 pi by omega. Let me call this as equation number 1. Remember, every time हमें फाइंड आउट क्या करना है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो पूछा है उसका पहले इक्वेशन तैयार करो, उसमें जो अननोन है उसके तरफ फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस करो, है ना. जैसे कि यहाँ पे अभी हमें टी फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. 2 पाई इज कांस्टेंट, है ना. तो बचा क्या? ओमेगा, मतलब हमें ओमेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा. और ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये कुछ डेटा हमने डिराइव करके रखा है डायग्राम में, तो उसका यूज करते हैं हम. ठीक है, और वहां से ओमेगा फाइंड आउट करेंगे, उसको यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे. सो फ्रॉम द डायग्राम क्या मिल रहा है हमें? अलोंग एक्स डायरेक्शन, राइट, अलोंग एक्स डायरेक्शन कौन से फोर्सेस है? FCP और T dash x. So T dash x is equal to FCP. Obviously, the magnitude of T dash x is equals to magnitude of FCP. Right? तो T dash x is equals to FCP हो गया. तो T dash x की वैल्यू क्या है? T dash sin थीटा. So it is T dash into साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू. अभी एफसीपी में से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा, है ना. 3 इक्वेशन है, mv स्क्वायर बाय आर, mr ओमेगा स्क्वायर और mv ओमेगा. अब इसमें से mv स्क्वायर बाय आर यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ओमेगा नहीं है. फिर बचे क्या? 2, mr ओमेगा स्क्वायर और mv ओमेगा, है ना. हमें हमारे हिसाब से एक रेडियस भी है ना. सर्कुलर मोशन है तो रेडियस है, तो mr ओमेगा स्क्वायर यूज कर सकते क्योंकि mv ओमेगा तीसरे वाले इक्वेशन में आर नहीं आएगा. सो यहाँ पे एफसीपी के जगह पे हम यूज करेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. ये हो गया अलोंग एक्स डायरेक्शन. एंड अलोंग वाई डायरेक्शन में क्या आएगा? ऑल्सो अलोंग वाई डायरेक्शन क्या दिखाई दे रहा है? वाई डायरेक्शन में टी डैश वाई विल बैलेंस एफ जी, है ना. टी डैश वाई will balances fg. So therefore t dash y is equals to fg and fg is nothing but equals to mg and t dash y is t cos theta. So we'll put this value t cos of theta is equals to mg. We'll call this as equation number 3.
हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, बिकॉज अगेन दिस ऑल फोर्सेस और कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ऑफ टी डैश will simultaneously be arising over here. So dividing इक्वेशन, अब कौन से इक्वेशन को कौन से इक्वेशन के साथ, 2 को 3 के साथ या 3 को 2 के साथ, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओमेगा। ओमेगा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 2 को 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2, न्यूमरेटर में जो हमें फाइंड आउट करना है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। सो व्हाट विल गेट, अगेन आरएचएस को मैं पहले एलएचएस के साइड में लिखता हूँ, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इसकी भी आरएचएस आएगा एम जी इज इक्वल टू, इट इज टी डैश साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टी डैश कॉस ऑफ थीटा। कुछ कैंसिल जरूर होगा यहाँ पे भी, है ना, ये एम एम कैंसल, ये टी डैश कैंसल। साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम टैन थीटा कर सकते हैं, लेकिन वी विल कीप इट एज इट इज बिकॉज सम मोर मॉडिफिकेशन वी कैन परफॉर्म। हमें ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जी को न्यूमरेटर में भेज देंगे, जी इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब ये आर क्या है, रेडियस। कैन यू ऑब्जर्व द रेडियस हियर, कैन यू से दिस इज रेडियस विच इज अपोजिट साइड ऑफ थीटा, है ना। और ये अगर अपोजिट साइड ऑफ थीटा है, तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा के लिए क्या करते हैं, साइन, ये लेंथ है ना, इसके एडजेसेंट मतलब ये हो जाएगा, दिस इज एल कॉस ऑफ थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आर मतलब आर विल बी इक्वल्स टू एल साइन ऑफ थीटा, है ना। तो ये आर के जगह पे एल साइन थीटा यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, राइट। सो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर बिकम्स इक्वल्स टू जी इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर के जगह पे आ गया एल साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। आर इज इक्वल्स टू, सिंस आर इज इक्वल्स टू एल साइन ऑफ थीटा, है ना। साइन थीटा कैंसल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा, जी बाय एल कॉस थीटा। हमें ओमेगा चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज ओमेगा, और इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो रूट में डाल देंगे रूट ऑफ जी बाय एल कॉस ऑफ थीटा, हो गया, ओमेगा आ गया। यहां से उठाएंगे, इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 t is equal to 2 pi by omega, omega is this, so root of g by l cos of theta, है ना। ये l cos theta रूट के अंदर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा सिंप्लीफिकेशन में, तो दिस बिकम्स t is equals to 2 pi root of l cos of theta divided by g. So this is the time period, we'll call this as equation number 4, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड आ गया, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी ले लेते हैं। देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज एफ इज इक्वल्स टू 1/t रहता है, तो 1/t मतलब 1/t इज दिस, दैट इज 2 पाई रूट ऑफ l cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। अब g डिनोमिनेटर में आ गया, रूट के अंदर, उसको ऊपर ले लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ g बाय l cos of theta. So this is the frequency, equation number 5, frequency of conical pendulum. So this is what all about the conical pendulum. It will definitely ask you for 3 marks in section C. ठीक है।
So thanks for watching the video.